Good morning, everyone, and welcome back to the Royal Bulls. Today's date is 18th of July, and currently the time is 9:12 a.m. So, guys, अगर markets को देखेंगे तो every single market is in green. So we are opening very positive right now. If we look at the SGX Nifty, it's showing 159 points of gap up, and if we look at the Nifty, then it's giving around 102 points of gap up. So if we draw a Fibonacci from this high to this low, we get these important levels: 0.618 level, which is 16,114 level. So markets are breaking out these levels, and there are two important resistances where the markets can take resistance. So this is one of the levels, 16,200, and otherwise there are no levels. If we look at the Bank Nifty, so Bank Nifty is also gapping up, but not much. If we give, uh, if we draw a Fibonacci from the top to bottom, then we get uh, 0.382 levels, 38% level. So we'll wait how Bank Nifty will react on the opening, because the bank's result are being there. So HDFC Bank has a huge percentage in the Bank Nifty, so it's gapping down. So that's why the main reason why Bank Nifty has not given a huge gap up is because of the HDFC Bank. So let's see how the markets will react. HDFC Bank is opening at its support, at its important support. So if it breaks down, then it can fall. It can give a good amount of fall, and otherwise it can give a huge rally from here, because you can see that many a times HDFC Bank has given a huge rally from here. So let's see. सो गाइस, करंटली टाइम हो रहा है 9:16 AM एंड मार्केट्स ओपन हो चुके हैं. यहाँ पे आप देखोगे कि HDFC बैंक ने यही लेवल से एकदम बहुत ही अच्छा स्ट्रॉन्ग बाइंग दिखाया है. एंड अगर अपन बैंक निफ्टी भी देखें तो बैंक निफ्टी यहाँ पे ओपन होते ही इसने 0.382 के लेवल को ब्रेकआउट दे दिया है. If we look at Nifty also is taking resistance from these levels, 16,200. Yeah, we can create a selling view, but इसमें ज़्यादा फॉल नहीं आएगा, because there's a huge positive sentiments. So we have to look at the price action, what's the price action building here, and then we have to decide. If we look at Bank Nifty, then there can be an opportunity to catch a good trade, because you can see that the flow is on the upside. So we can easily catch the target till 0.5 levels, which is 35,000 levels. So we are getting currently 100 points. The stop loss would not be good enough, because if we keep the stop loss here, then it can be easily hit, because this is the first time selling. So this is a retracement. So Bank Nifty can fall too. So we have to keep our stop loss at a good level. So we'll wait. If we get a good stop loss, then we'll pray. Currently टाइम चल रहा है 9:27 AM, एंड यहाँ पे मैंने ट्रेड लिया है एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में. सो मैंने बाइंग पोजीशन बनाई थी ये लेवल के आसपास में. सो वी आर करंटली इन अ लॉस ऑफ 137 रुपीज़. सो गाइस, वेट करते ही ये ट्रेड कैसा परफॉर्म करती है. ये जो 5 मिनट्स बुलिश कैंडल जो थी, उसको देख के मैंने ट्रेड लिया था, एंड बाद में एक बेरिशनेस शो हुई है. तो मैं बस जस्ट वेट कर रहा हूँ कि बैंक निफ्टी को अगर अपन यहाँ पे देखेंगे तो बैंक निफ्टी ने यहाँ से एक रेजिस्टेंस ले लिया था ऊपर साइड जब जा रहा था तभी वो. तो जैसे हाई पॉसिबिलिटी अगर इस लेवल के ऊपर में रहता है बैंक निफ्टी, तो वो अपसाइड मोमेंटम दिखाएगा. वरना ये ट्रेड से भी अपन को एग्जिट करना पड़ेगा, बिकॉज अगर बैंक निफ्टी गिरेगा तो एयू बैंक भी गिरेगा. सो गाइज, यहाँ पे करंटली टाइम चल रहा है 9:54 AM, एंड यहाँ पे मेरी पोजीशन जो है वो 500 के लॉस में है, नेट टू नेट. अगर अपन एयू बैंक को यहाँ पे देखेंगे तो इसने यहाँ से रेजिस्टेंस लेते हुए फॉल किया है. और अगर अपन यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम में चलेंगे, जहाँ से मैंने इसका एनालाइज किया था, सो ये एक सपोर्ट लेवल पे आया था. दिस इज द सपोर्ट ट्रेंड लाइन. तो यहाँ से ये ऊपर साइड जा सकता है इजीली, बट अभी वैसा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है इसमें. वैसे कुछ मोमेंटम नहीं दिख रही है यहाँ पे, सेलिंग मोमेंटम दिख रहा है. सो गाइस, वेट करते हैं. अपना स्टॉप लॉस तो यहाँ पे इंटैक्ट है 550 रुपीज़ का. सो लेट्स सी कैसा जाता है. यहाँ पे भी 500 का लॉस चल रहा है. जैसा भी रहता है मैं आपको अपडेट करूंगा. सो स्टे ट्यून्ड गाइस. यहाँ पे करंटली टाइम हो रहा है 10:36 AM, एंड एयू बैंक में यहाँ पे अपन अभी भी लॉस में ही है. यहाँ पे एक सेलिंग आ गई, यहाँ पे अच्छी बाइंग आ गई थी, उसके बाद में सेलिंग आ गई वापस. एंड अगर यहाँ पे अपन बैंक निफ्टी में देखेंगे तो मैंने एक पोजीशन बनाई थी जब इसने ये वाला जो जोन है अपना, अगर अपन 15 मिनट्स पे देखेंगे तो ये जो जोन है इसका ब्रेकआउट यहाँ पे दिया था 15 मिनट्स टाइम फ्रेम में. तो तभी मैंने यहाँ पे एक पोजीशन बनाई थी विच वॉज ऑन बुलिश साइड. तो मैंने क्या किया था, यहाँ पे 34,700 के पुट ऑप्शन को शॉर्ट किया था, एंड एज अ हेज 33,500 को बाय किया था. सो मेरा व्यू था कि ये अपसाइड जाएगा यहाँ से इजीली 35,000 35,040 के लेवल्स तक चले जाएगा.
बट वैसा नहीं दिख रहा है। यहाँ पे एक सेलिंग देखने को मिल रही है। अगर अपन HDFC बैंक को देखेंगे यहाँ पे, तो HDFC बैंक एकदम यहाँ पे स्टार्टिंग में एकदम बुलिश मोमेंटम दिखाने के बाद में कंटिन्यूस फॉल कर रहा है। सो गाइस बस वेट करते कि अगर HDFC ये वाले लेवल को भी तोड़ देता है तो फिर बैंक निफ्टी सस्टेन ही नहीं कर पाएगा, तो अपन को बैंक निफ्टी में से एग्जिट करना ही पड़ेगा। एंड AU बैंक में बात करें तो AU बैंक में तो अभी भी स्टॉप लॉस 550 रुपीज़ का इंटैक्ट है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो सेलिंग आ रही है बट वॉल्यूम जो है वो धीरे धीरे डिक्रीज हो रही है, तो जैसे हाई पॉसिबिलिटी कि ये वापस थोड़ा सा अपसाइड चले जाए। लेट्स सी ये क्या करता है, मैं आपको अपडेट करूँगा। करंटली टाइम चल रहा है 10:55 AM एंड अगर पोजीशंस को देखेंगे तो नेट टू नेट अपन कॉस्ट टू कॉस्ट आ चुके हैं। अगर AU बैंक की बात करें यहाँ पे, तो AU बैंक ने यहाँ पे इनिशियल ट्रेडिंग लेवल से थोड़ा सपोर्ट दिखाया है। और अगर यहाँ पे HDFC बैंक की बात करें तो अपने ने जो ये सपोर्ट लेवल ड्रॉ किया था वहां से थोड़ा अपसाइड जा रहा है। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी ने थोड़ा स्टार्टिंग में स्कैरीनेस दिखाया था, यहाँ से सपोर्ट लेते हुए ऊपर साइड जा रहा है, तो अपना ये जो 35,000 का लेवल है उसके थोड़े से पहले में अपन एग्जिट कर सकते हैं। एंड निफ्टी की बात करें तो यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल पे 16,200 पे यहाँ पे है, तो इसको देखना पड़ेगा यहाँ पे कि ये इसको भी ब्रेकआउट देके और ऊपर जाने की कोशिश करता है कि ये लाइक यहाँ तक भी जा सकता है निफ्टी में। अभी तो निफ्टी में स्ट्रेंथ आप देखो, यहाँ पे एक 3 रेड कैंडल्स बनी बट एक भी इसको नीचे नहीं लेके आ पाई। सो गाइस वेट करेंगे, देखेंगे कि कैसा रहता है, उसके बाद मैं आपको पोजीशंस अपडेट करता हूँ। सो गाइस यहाँ पे बैंक निफ्टी में 952 पे आ चुका है, ये रेजिस्टेंस लेवल के आसपास में, तो अपन यहाँ पे प्रॉफिट्स बुक करने की कोशिश करेंगे, एग्जिट करेंगे जो भी प्राइस चल रहा है उस पर। एग्जिट कर लिया, इन दोनों को पोजीशंस को एग्जिट कर लिया है मैंने। अभी AU बैंक की बस पोजीशन बाकी है। अगर AU बैंक में देखेंगे यहाँ पे, तो AU बैंक यहाँ से थोड़ा सपोर्ट लेने की सपोर्ट एक्टिविटी दिख रही है यहाँ पे AU बैंक में भी। एंड बैंक निफ्टी में मैंने यहाँ पे बुक कर लिया बिकॉज यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लेवल था एंड निफ्टी भी एक कंटिन्यूसली रैली दिया निफ्टी ने भी, तो निफ्टी भी शायद से यहाँ से थोड़ा एक रिट्रेसमेंट के लिए जा सकता है। तो इसलिए बैंक निफ्टी में बिकॉज विक्स विक्स इंडिया विक्स जो है वो बहुत कम है, तो डीके बहुत कम मिलेगा, डीके अच्छा नहीं मिलेगा, इसलिए मैंने प्रॉफिट्स बुक कर लिया। तो गाइस करंटली द टाइम इज 11:23 एंड अगर यहाँ पे अपन बैंक निफ्टी की बात करेंगे, बैंक निफ्टी में बहुत ही अच्छा मूव आ गया। अगर अपन होल्ड कर रहे होते तो अपने बहुत अच्छे प्रॉफिट हो जाते हैं आज 1000 के करीब इसके अंदर। एंड अगर AU बैंक की बात करें तो AU बैंक में भी यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बनी है 15 मिनट्स टाइम फ्रेम में। अगर यहाँ पे मैं आपको 1 मिनट टाइम फ्रेम में शो करूँ तो ये जोन से ही इसने अच्छा एक ब्रेकआउट लगाया है, तो ये मेरे को लग रहा है कि आज ये फुल डे साइडवेज रह सकता है, या फिर प्रोबेबिलिटी ये भी है कि यहाँ से एक अच्छा अपसाइड मोमेंटम आ जाए। तो गाइस यहाँ पे वॉच करेंगे, अगर ये लेवल के ऊपर में ही ये सस्टेन करता है तो फिर अपन है ना इसको जो भी अभी मतलब जो भी चल रहा होगा कंटिन्यू रखेंगे ट्रेड को। एंड अगर ये लेवल के नीचे में आ जाता है ये वापस से 15 मिनट्स टाइम फ्रेम में, तो जो भी पोजीशन चल रही होगी उसमें ज्यादा इसमें लॉस बेयर नहीं करेंगे आज, बिकॉज इस ये ट्रेड में अपन को प्रॉफिट हो चुका है, तो इसके इसके अंदर जो भी चल रहा होगा कॉस्ट टू कॉस्ट में निकलने की ट्राई करेंगे। सो गाइस देखते हैं कि अगर बुलिश मोमेंटम इंटैक्ट है तो फिर ये इजीली अपना टारगेट अचीव कर देगा स्ट्रॉन्ग मोमेंटम की वजह से। यहाँ पे देखो बैंक निफ्टी में अपना जस्ट टारगेट अभी अचीव होने वाला है 125 पॉइंट्स का। एंड निफ्टी की बात करें तो निफ्टी यहाँ से कभी भी रेजिस्टेंस ले सकता है, तो वही निफ्टी में भी एक अगर अगर मैं आपको ओपन इंटरेस्ट दिखाऊं तो ओपन इंटरेस्ट बहुत स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे 16,200 पे बहुत सारे कॉल्स को राइट किया हुआ है। एंड बैंक निफ्टी में भी सिमिलर 35,000 पे बहुत ज्यादा पुट कॉल राइटिंग हुई है। तो गाइस देखते हैं, मार्केट तो बुलिश ही है। अभी AU बैंक को देखेंगे, अगर इस लेवल के नीचे में आता है तो फिर अपन काट देंगे पोजीशन। एंड यहाँ पे पोजीशंस क्लोज कर दी AU बैंक में मैंने। यहाँ पे नेट लॉस 327 का बुक किया है मैंने, बिकॉज अगर आप रीजन जानोगे तो रीजन में यहाँ पे ये जो बुलिश कैंडल थी उसके बाद में यहाँ पे एक इनसाइड चली गई है। उसके बाद में जब भी यहाँ पे ये कंसोलिडेट कर रहा था तो मुझे यहाँ पे सेलिंग मोमेंटम बहुत स्ट्रांग लग रहा था। अगर आप 1 मिनट पे देखोगे तो यहाँ पे बहुत स्ट्रांग सेलिंग मोमेंटम आ रहा था एंड बायर्स वर नॉट एबल टू टेक इट अप, तो मैंने यही इसी जगह पर मैंने एग्जिट कर दिया। और अगर एग्जिट नहीं किया होता तो ये अच्छा मूव देखने को मिलता। बट दिस इज व्हाट ट्रेडिंग इज होल अबाउट कि अपन किस पोजीशन पे सही समय पे एग्जिट कर सकते हैं। सो अगर मेरे मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पे मेरे को एग्जिट करना था तो फिर मैंने इसलिए एग्जिट कर लिया। एंड या वी हैव क्लोज्ड इन नेट प्रॉफिट्स ऑफ 347 रुपीज। So thank you everyone for watching.